Morning, students. So today we are reading the poem The Voice of the Rain, written by Walt Whitman. Okay, so this poem is taken from the class 11th from the book Hornbill. Okay, so the voice of the rain. First, I will tell you about this. The voice of the rain mean this starting of this poem. Look at this voice and rain. सो आप देखते होंगे रेन की जो है साउंड होती है बेटा, वो वॉइस बोल नहीं सकते, ह्यूमन बोलते हैं उनकी वॉइस होती है, बट रेन की जो है साउंड होती है. सो हेयर इज़ द पर्सोनिफिकेशन हेयर. सो दिस डिवाइस इज़ यूज्ड, इसका यूज़ होता है मीन्स नॉन ह्यूमन थिंग्स जो भी है, एक जो है ह्यूमन क्वालिटी के जो है उसको जब रूप दिया जाता है तो दैट इज़ कॉल्ड पर्सोनिफिकेशन. ओके, सो द वॉइस ऑफ द रेन. ओके, एंड नाउ वी स्टार्ट आवर पोएम. एंड who art thou, said I to the soft falling shower, which strange to tell and give me an answer as her here translated. I am the poem of the earth, said the voice of the rain. Internal I rise, impalpable, out of the land and the bottomless sea. Okay, so here, so these words like art thou, these words are not used nowadays. So art means are and thou means you. Okay, so this and who are you in this line, it means this. Okay, so in this first I will discuss our meaning. Shower means that drizzling, हल्की हल्की बौछार गिरना. ओके, दैट स्ट्रेंज मीन्स अजनबी. ओके, एंड दिस इंटरनल मीन्स दैट विच इज अनएंडिंग फॉर एवर. ओके, मीन्स फॉर एवर. ओके, एंड दिस impalpable, that is means anant. Okay, so in this stanza, what and who art thou means you है, and who are you, said I means here, I here poet here, this I means here poet. Okay, so poet here. so वो पूछ रहा है, I said I means poet to the soft falling shower means जो धीरे धीरे जो हल्की हल्की बौछार आ रही है, उस कवि ने जो है उससे पूछा और उसको क्या जवाब मिला, विच इज़ स्ट्रेंज टू टेल, और जो है मुझे बड़ा अजीब लगता है, मीन्स गेव मी एन आंसर, वहाँ से मुझे जो आंसर मिला एज हेयर ट्रांसलेटेड, और जो उसने जो है कैसे जो है इस प्रकार जो है आंसर मिला मुझे, तो आई एम द पोएम ऑफ द अर्थ, उसने आंसर दिया मैं जो है धरती की जो है मैं कविता हूँ. किसने कहा? द वॉइस ऑफ द रेन. द वॉइस ऑफ द रेन सेड दैट आई एम द पोएम ऑफ द अर्थ, मैं इस धरती की जो है कविता हूँ. और इंटरनल आई राइज, सो इंटरनल मीन्स जो है विच इज़ अनएंडिंग, हेयर मीन्स व्हाट, विच अनएंडिंग. ओके, सो इन दिस में क्या होता है कि जो मैं जो है अनंत रूप से और बिना नज़र आए धरती से, एवं जो ये बॉटमलेस सी है ना, सागर से जो उठती हूँ. सो हियर what he was telling about the evaporation. So in this in your science you have also read about the evaporation is means in which this what happened, water that change into vapors. Okay, and that forms the cloud, and after that again it will comes down. means here water cycle means आपको जो है वाटर साइकिल के बारे में भी जो है इसमें बताया गया है कि किस तरह से वाटर साइकिल यहाँ पर टेक प्लेस कर रही है, और जो फॉर्म है वाटर की वो किस तरह से चेंज होती है, और फिर से जो है वो फिर अपने उस रूप में आ जाती है. ओके, here so
upward to heaven, whence, upward to heaven, whence, vaguely formed altogether, changed and yet the same. I descend to lave the dross, atomies, dust layers of the globe, and all that in them without me were seeds only, latent, unborn. Here first come to this word meaning. Here whence, whence means beta from where. These words are not used now. Okay, so from where, vaguely means not cleared. Okay, this is not cleared. Descent, descent means come down. Lave mean wash, धो देना. Okay, atom is, as you know, atoms, the smallest tiny particles that is found in our environment. So that is the atoms, छोटे छोटे जो कण होते हैं. ओके, एंड अगेन latent, latent means hidden, hidden means छुपा हुआ है. unborn, जो अभी जिसका बर्थ नहीं हुआ है. ठीक है. सो इन दिस स्टैंजा व्हाट द पॉइंट वांट्स टू टेल कि मैं जो है, मैं ऊपर, हेवन मीन्स जो आकाश की ओर जाती हूँ. सो वी हैव डिस्कस अबाउट द वाटर साइकिल. इन दैट द इवेपोरेशंस system process I have told you about, that water changes into vapors and it take the form of clouds and then it rain. इस तरह से जो है वाटर साइकिल जो है चलती है. तो मैं ऊपर जो है आकाश की तरफ जो है जो जाती हूँ. upwards to heaven means ऊपर की तरफ जो है जाती हूँ, और वहाँ मेरा जो है ना, जो रूप है, जो निर्माण होता है वो अस्पष्ट होता है, वैग्यू, नॉट क्लियर्ड. और मैं बिल्कुल जो है ऑल टुगेदर चेंज, मैं बिल्कुल बदल जाती हूँ. एंड फिर भी मैं सेम रहती हूँ. मीन्स चेंज होती है. वाटर वेपर्स में चेंज होता है, वेपर्स के बाद क्लाउड्स बनते, क्लाउड्स के बाद वो फिर बारिश होती है, फिर पानी में. मीन्स इसका जो रूप है, वेपर्स भी पानी है. तो ये जो है येट द रेम रिमेन जो है सेम रहती है. ठीक है, वही रहती है. एंड ऑल दैट इन दैम विदाउट मी वर सीड्स. अब यहाँ पर क्या है, आई डिसेंड टू लेव. लेव मीन्स जो यहाँ पर मैं धरती पर जो है अपना जो है अकाल, जो कण हैं, एटोमीज, और जो है डस्ट लेयर्स हैं, और जो भी मेरी पृथ्वी जो है अर्थ को जो मैं पूरी जो अच्छे से जो है धो डालती हूँ, जो पूरे डस्ट से भरी हो जाती हैं, तो मैं उसको जो है धो देती हूँ. और उसमें से जो कुछ है वह मेरे बिना केवल बीज ही रहता है. दैट लैटेंट मीन्स बीज ही रहता है. अगर मैं बारिश का रूप लेके धरती पे नीचे ना आऊँ तो जो सीड है वो जो धरती में जमा हुआ है वो बीज ही रहेगा. जब मैं बारिश के रूप में नीचे बरसती हूँ, धरती गीली होती है, बीज भी गीला होता है, और इस तरह से जो है बीज भी जो है क्या है, दैट ऑल्सो स्प्राउट मीन्स वो भी जो क्या होता है, अंकुरित हो जाता है. सो जो अजन्मा है. ठीक है. एंड फॉर ever by day and night I gave back life to my own original and make pure and beautify it for song issuing from its birthplace after fulfillment, wandering, racked or erect, dule with love returns here. Okay, so here and here and forever बाय डे एंड नाइट. और मेरा जो मैं हूँ ना, वट फर्स्ट वर्ड मीनिंग आई विल टेल यू. रैक्ट मीन्स हियर केयर फॉर, एंड अनरैक्ट मीन्स नॉट केयरिंग. ओके, सो इशूइंग मीन्स यहाँ स्टार्ट है. ओके, सो व्हाट हैपन्स इन दिस स्टैंजा, एंड फॉर एवर बाय डे एंड नाइट आई गिव बैक लाइफ टू माई ओन ओरिजिनल. तो मैं जो है यहाँ पर जो वाटर साइकिल है वो डे एंड नाइट चलती रहती है. ऐसा नहीं है कि वो रेस्ट करती है. इट मीन्स जो वेपर्स हैं, पानी है, दैट वाटर साइकिल दैट इज़ अ कंटिन्यूइंग गोइंग ऑन. ओके, तो वो जो है दिन रात जो है उसका जो है चलती रहती है. और एंड मेक प्योर, और मैं जो है इस धरती को जो है पवित्र यानी शुद्ध बनाती हूँ, और जो है सुंदर बना देती हूँ. सब चीज़ धो के बड़ा अच्छा हो जाता है ना, तो सुंदर लगती है. नहाए धोए पौधे भी बहुत सुंदर लगते हैं. तो इस तरह से मैं प्यूरिफाई कर देती हूँ, ब्यूटीफुल कर देती हूँ उसको. एंड
for song issuing from its birthplace. Now he is comparing the song and rain in this. So poet is telling about that, क्योंकि जो है for song that जो गीत अपने जन्म के स्थान से निकलकर that is issuing starting from its birthplace after fulfillment and wandering. तो जो है पोएम की यहाँ पर कंपैरिजन हो रही है सॉन्ग के साथ. तो किस तरह से देखो, तो जो है जन्म के स्थान से निकलकर पूर्ण होने के बाद जब पूरा हो जाता है, चाहे पहचाना जाए या ना पहचाना जाए, रिट एंड नॉट दिस, तो प्यार के साथ वहीं लौट आता है. मीन्स जब आप कोई भी जो है कविता है तो इशुइंग जो भी है आपकी, तो वो क्या होती है कि पहले उसको जो है उस गाया जाता है, फिर उसके बाद जो है जो पहले कंपोज किया जाता है, फिर उसको गाया जाता है, फिर उसको पब्लिसिटी मिलती है, लोग उसको जो है अप्रिशिएट करते हैं, प्रशंसा की जाती है, फिर उसको जो है इनाम मिलता है, गिफ्ट मिलता है, तो वो प्यार है ना जनता का. एंड फिर उसके बाद जो है कोई उस चीज़ को क्या करे, पहचाना जाए या ना पहचाना जाए. मीन्स जो है उसने जो सॉन्ग है जो गाया है उसकी जो प्रसिद्धि मिली है, कोई सुने या ना सुने, लेकिन उसको जो है पब्लिसिटी मिल जाती है और फिर से वो उसी जो है जहाँ दिल से निकलती है वो आवाज़, वो फिर से वहाँ चला जाता है. सो देयर इज़ अ सेम हेयर द कंपैरिजन बिटवीन द रेन एंड सॉन्ग. मीन्स जो रेन है अपना जो है वाटर साइकिल जो है ऐसे कंटिन्यू चलता रहता है और वो फिर से वही अपना रूप जो है धरती पे आ जाती है और धरती पे आके फिर से वो पानी का रूप हो जाता है, ऊपर जाती है, फिर वही है. तो इसी तरह से यहाँ पर भी जो है गीत की जो है पब्लिसिटी होती है और फिर से वो अपने उसके जो है दिल में जहाँ से निकलती है वो गीत, वो फिर से वहीं उसके जो है दिल में समा जाता है. ओके, सो दिस इज़ द पोएम. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द literally device of this poem. Okay, so first come to this first stanza. So first stanza we will see here. So literary device we will discuss about this. So first is the personification. So personification is what I have told you, when non human being जो है एक human quality के साथ उसकी comparison किया जाता है, that is a personification. So here I am here. So I am here, look this, I am here is I am is here rain जो है इसको जो है एक this is the personification here. Okay, so next is a word is the alliteration. Next is a alliteration. So alliteration, first we will see what is the alliteration. So alliteration is what, that is the repetition of consonant sound at the start of two or more consecutive words. Okay, so here we will see where we see that there are this, look in the first stanza where are we see. So we see here look at this, soft and shower. So S sound is here form. So this is the alliteration. Okay, and next is our imaginary. So imagination is there. So this in this is the scene of imagine, जो है हम यहाँ पर imagination जो है कर रहे हैं. What is the imagination? So जो भी हम यहाँ scene create हो रहा है तो उसकी imagination है यहाँ पर. And next is a metaphor. Metaphor is again what, there is a comparison, we are comparing. So here comparing poem of the earth. Look at this. This is the poem of the earth, and that is the we are comparing rain. So here rain and poem. Okay, so comparison. Next is a hyperbola. What is the hyperbole? So in this what means जो है एक्साग्रेशन वर्ड्स. सो बढ़ा चढ़ा कर हम जो बोलते हैं. सो हेयर व्हाट, बॉटमलेस सी का जो है नीचे तो होता ही है, मीन्स वो जो है बॉटमलेस तो नहीं होती, उसका जो है बॉटम तो होता है, पर यहाँ पर कहा है कि जो वो जो सी है उसका जो है क्या है, बॉटमलेस है, वो है ही नहीं उसमें. सो दिस इज द हाइपरबोल, दैट इज कॉल यू कि exaggeration. Okay, so this is hyperbola. Next is we are talking about next, come to the next stanza.
upward. Okay, in this, okay, here in this there is a consonance sound. So consonance is what, when there is a repetition of the consonant sound in the starting, in the middle, or the at the end of the word here. Okay, so upward, look at this D sound, upward, formed, changed. So their D sound is very prominent here. Okay, so here is a consonants. Okay, and next is your anaphora. Next is anaphora. Anaphora is what? Anaphora. Okay, so anaphora, what is an anaphora? Anaphora is two or more consecutive lines starting with the same words. So here same words are used, where we see this and this. So this is the anaphora. Okay, and look at this last, and there is a consonant sound where R, this R and written R sound is here, that is, so this is the consonants. Okay, so in this we have completed our literally device also. Thank you.